Now sun has gone behind the cloud, light breeze running over the ground. Terrific Maharaja Chhatrapati Shivaji Cricket Ground, Bhadwar Temgarpada. Grassy outfield. या स्पर्धेचं संपूर्ण लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून केलं जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण आपण भादोड टेमघरपाडा पाहतोय आणि या मैदानातून ही स्पर्धा थेट प्रक्षेपित केली जाते. यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करू शकता. कॉल है, लास्ट ऑफिशियल कॉल शिवास को 1 मिनट में आपको खेल की शुरुआत करना है. दिस इज द फाइनल एंड लास्ट कॉल. She was one of the rising team in previous season in tennis cricket also. In city emerging cricket, the champion team, Shivas 11. But remember, Rehan Rajnoli is the champion in this season in rubber cricket. They won their home cup, let Nityanand Thakre Cup Rajnoli. अगदी बरोबर. रेहान स्पोर्ट्स रांजरोली संघाने स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे चषकावर नाव कोरलं तर बालाजी स्पोर्ट्स सरळपाडा संघाला पराभूत करून या स्पर्धेमध्ये चांगलं प्रदर्शन रेहान स्पोर्ट्स रांजरोली संघाने केलं होतं. Two openers on the ground, still we waiting for the start the game. On field umpire Paresh Mahajan. लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है अथवा आपको पेनल्टी दी जाएंगी. शिवास 11, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल टू यू. In previous match, the next match today, high voltage match between Gorsaibi versus Challenge Sport. So play begin now is going to be Deep open the bowling attack. One of the successful and wicket taker bowler as far as Shiva's concerned. Deep Baria. Facing him Pramod Matre. Here we watch Deep Baria. Facing him Pramod Matre. Here he go. Goes past us. राहुल गुप्ता जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं. आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है. राहुल गुप्ता जी. दीप बैरिया, वेरी स्ट्रेट आउट फील्ड, लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ एंड वाइडिश लॉन्ग ऑफ. Here goes Deep Baria. First ball, this time goes his back foot, pull this ball through the square leg fence. Glorious shot, 6 runs. सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूची वाट पाहत होता आणि चेंडूची वाट लावताना आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिल्याच चेंडूवर पहिला मोठा फटका, षटकार प्रमोद म्हात्रेच्या बॅटमधून. Deep Baria drop shot and wait and watch policy used by Pramod Matre. Goes his back foot, a cracking pull stroke for 6. Baria, another mighty blow. There is the fielder, and oh, he's dropped. Dropped by the fielder. भावेश ठाकरे तिथे होता, मॅन फ्रॉम रांजनोली. प्रमोद म्हात्रे मॅन फ्रॉम रांजनोली याचा झेल मात्र पकडू शकला नाही. Yes, Pramod Matre gets alive. 2-2 score now. Rehan Rajnoli, Mahesh Thakre fam team 8 without loss. Deep Baria, right arm over the wicket. Oh, this time try to glance down to leg side, should be a wide. Yes, it is. 1-2 total now. Score moves up to 9 for no wicket. Pramod Matre, the legendary cricketer. This time once more swing on the onside, all on the ground to mid wicket.
They go for one and they settle for one. 1-2 score now. Pramod Matre moves up to 9 and his score moves up to 10. Now, oh beauty, beauty, swinging Yorker. And Jitu in trouble now. Jitu, one of the informed batsmen. This time down to leg side, balls in Dusra Molla, white signal from umpire Paresh Mahajan. 1-2 total now, score moves up to 11 without loss. Deep Baria. This time a lovely looking on drive, sweet wise, and in comes return from fielder. Meanwhile, batsman gets 2. So 2 more to total now, score moves up to 13 without loss. 13 without loss. Jitu off the mark with 2 deep. Another Yorker lane delivery turning on the onside with the corner, and they threw for 1. And that marks the end of the Deep Baria's over, and that marks end of the first over. Losing a toss, batting first here, Rayan Rajnoli exactly 14 without loss. एक ओवर की समाप्ति 14 रन बिना किसी विकेट के बनाए रेहान राजनौली ने. देखना है कि गेंदबाजी किसको दी जाती है. अब धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है. बरसाती क्रिकेट, पौसाली क्रिकेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. एक ओवर की समाप्ति, रन बने 14 बिना किसी विकेट के. प्रमोद खेल रहे 9 पर, जीतू ने बनाए 3 रन. ट्रॅक माले येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकामध्ये शिवास्फोट संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली होती 14 धावा. प्रयाग माली आए, देखना क्या प्रयास करते हैं. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया, मिस टाइम स्ट्रोक है. 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. हालांकि शॉट तो उतना अच्छा नहीं था. 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है. 16 रन बिना किसी विकेट के रेहान राजनौली. अगला मुकाबला गोरसई बी पवन केने का सामना चैलेंज से. ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, वाइट. 17 पे पहुंचा है स्कोर. ओवर नंबर 2 चलता हुआ. प्रयाग माली गेंदबाजी कर रहे. रेहान राजनौली पौसाली क्रिकेट रेनी सीजन की चैंपियन टीम है. राइट आर्म राउंड द विकेट. जीतू को खींच के मारने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद, बल्ले का किनारा, आउट हो गए जीतू. पहला विकेट गिरता हुआ रेहान राजनौली का. स्कोर है 17 रन 1 विकेट. 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अब बारिश शुरू हो चुकी है. अब आएगा मजा. नए बैट्समैन भूषण मात्रे बहुत ही मजबूत काटी के बैट्समैन है और बड़े शॉट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. या दरम्यान मानकुलीतून दीपेश माली यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी खास करून प्रयाग माली आणि जितू माली यांच्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद दीपेश माली, आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. यस, प्रयाग माली मैन फ्रॉम मानकोली, मैन फ्रॉम भाटाले. स्कोर है 17 रन 1 विकेट. इस मरतबा अपने सामने ही पटक दिया. अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का. 1 फॉर दी ओवर का भी अंपायर इशारा करते हुए. अब बारिश शुरू हो चुकी है और बरसाती क्रिकेट में बारिश ना गिरे तो मज़ा भी नहीं आता है. प्रयाग इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया हवा में, पीछे फील्डर है और भूषण मात्रे 0 पे आउट.
भूषण याच्या बॅटमधून मात्र कुठल्याही प्रकारचा रन आपल्याला पाहायला मिळत नाही आणि भूषण शून्यावर पाहून फलंदाजी परतताना. स्कोर है इस वक्त 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं प्रयाग माली, अब तक 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं. दीपेश माली याच्या समवेत पंकज माली याच्याकडूनही प्रयाग माली आणि जितू माली याच्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तसेच त्यांनी या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. खास करून करेश मात्रे याच्यासाठी दीपेश माली आणि पंकज माली यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद दीपेश माली, पंकज माली, आपलं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. प्रयाग माली राइट आर्म राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइड घोषित के अंपायर ने. 1 रन और आता हुआ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे. 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. प्रयाग इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव किया है. 1 रन बना है. 1 रन से स्कोर 20 पे पहुंचा है. खाता खुला वहाँ पर सुखदेव का. सुखदेव वैसे भी खतरों के खिलाड़ी हैं, फेयरलेस कस्टमर हैं और इम्प्रोवाइज स्ट्रोक लगाने में काफ़ी माहिर है. इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए. गोरसई बी और चैलेंज. इस मरतबा टर्न कर दिया पैरों के सामने. डीप स्क्वायर लेग पे 1 रन बना. थोड़ा सा वहाँ पे मिसफील्ड हुआ. 2 रन बना लिए प्रमोद मात्रे ने. प्रमोद मात्रे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका क्रिकेट काफ़ी निखरता जा रहा है. राइट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा पुल किया गेंद को, लेकिन देखना अंपायर का क्या इशारा आता है. 2 रन. सोच रहे होंगे प्रमोद के ज्यादा क्यों घूमे. अगर मैं ज्यादा नहीं घूमता तो सीधा स्क्वायर लेग पे 6 रहता. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद अगर चली जाती है, पीले दीवार पे गिरती है तो भी 2 रन है, दीवार के पीछे जाती है तो भी 2 रन है. कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति रेहान राजनोली ने बनाए 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बरोबर 12च्या सरासरीने प्रतिषटकामागे धावा झळकल्या आहेत रेहान स्पोर्ट्स रांजरोली संघाने. प्रमोद मात्रे अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज सुखदेव भांबरे खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत, त्यामध्ये जितो आणि भूषण मात्रे. अब धीरे धीरे बारिश बरसती हुई और दीप बैरिया इस वक्त कंटिन्यू है. पांच ओवर का ये मुकाबला है. आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटक हाताळण्यासाठी दीप येतोय, ज्याने पहिलं षटकही हाताळलं होतं. एकूण संघाकडून तिसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय. दीप गोलंदाजी ट्रॅकवर. दीप सुखदेव को फ्रंट फुट पे आके पुल करना चाहते थे. अच्छी लंबाई की गेंद थी. गुडलेन पे पड़ने के बाद सुखदेव के बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास. गुरसई बी के कैप्टन और चैलेंज के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए. अगला मुकाबला हाई वोल्टेज मैच. इस मरतबा बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी हैं, लगभग वाइडिश में खड़े थे. 1 रन आता हुआ स्कोर में. धावसंख्या 1 धावेने वाढून होती ती. धावफलकावर 25 धावा. दीप बैरिया प्रमोद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे. इस मरतबा अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन. लगातार बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे हैं, और जब बैट्समैन को रूम नहीं मिलता है तो बैट्समैन धूम नहीं मचाता है. अगदी बरोबर. आणि धूम माजवताना बॅट्समन पाहायला मिळत नाही. धूम मची हुई है करेश की. इस मरतबा फिर अच्छी गेंद. दीप बैरिया जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अब उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं. पूर्णपणे संघर्ष करताना आपण पाहतोय या फलंदाजांना, ज्याप्रमाणे दीप गोलंदाजी करतोय सध्या. दीप बॉल परफेक्ट यॉर्कर. प्रमोद मात्रे
कि विकेट को उड़ा ले गई, विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती हुई कमाल की बॉलिंग की अभी तक दीप बैडिया ने इस ओवर में। नक्कीच अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आणि तिसरा फलंदाज रियान स्पोर्ट्स रांजुली संघाचा बाद होतोय प्रमोद म्हात्रेच्या रूपाने. आजच्या दिवसामधील चौथा सामना आपण पाहतोय. पहिल्या फेरीमधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रियान स्पोर्ट्स रांजुली विपक्ष सेवा स्पोर्ट्सचा यानंतर दुसऱ्या फेरीमधील सामन्यांना सुरुवात होईल आणि दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आपण घोडसे बी विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये पाहणार आहोत. उसके बाद जॉय कुमार और इस मैच की विजेता टीम. इस मरतबा स्विंग एंड मिस वाइड घोषित के अंपायर ने, लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद थी. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट. ओवर नंबर 3 चलता हुआ. इस मरतबा बैकफुट पे गए, हुक जरूर किया लेकिन सिर्फ 2 रन. इन 2 रन से सागर भोईर अपना खाता खोलते हुए और कुल स्कोर पहुंचा दिया उन्होंने. 3 ओवर की समाप्ति 30 रन 3 विकेट. आफ्टर 3 ओवर 3-0 3 विकेट्स. अगले 2 ओवर में क्या होगा आइए सुनते हैं सुभाष धुमाल से. खूप खूप धन्यवाद सदीक बाबे सर. 3 षटकांची समाप्तीनंतर 3चा आकडा आपल्याला अरे सुभाष धुमाल, आज क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये तो बताइए. सर आजचा दिवस खरं तर 2 खेळाडूंच्या नावे राहिला होता. कारण आजच्या दिवशी 2003 मध्ये साऊथ आफ्रिकन कर्णधार ग्रॅम स्मिथ याने 277 धावा झळकवल्या होत्या इंग्लंड या संघाविरुद्ध. आणि आजच्या दिवशी 2020 मध्ये इंग्लंडचा स्टार गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉड याने वेस्ट इंडिज विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या क्रेग ब्रॅडफर्डला बाद करून 500वा विकेट घेण्याचा विक्रम केला होता. यस, गोल्डमैन संजय तरे का आगमन हो चुका है. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. निवेदन है आपको मंच पे आना है. खेल की शुरुआत होती भी कुमार आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर यावेळी समोर केलेल्या 20 स्टेपमध्ये खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय आणि चेंडू निघून जातोय या सीमा पार 1-4 चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढते आणि धावसंख्या 4 ने वाढून होते रियान स्पोर्ट्स रांजुली संघाची धावफलकावर 34 धावा 34. देखिए जिस तरह की बॉलिंग है रेयान राजनौली के पास, इस तरह के रन काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं शिवास को. कुमार राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. यावेळी मात्र अतिशय दिशा वरकडलेला चेंडू पंचांचा वाईटचा इशारा होतोय. 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा पंचांकडून दिला जातोय. मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण शकील कोटी सरांना पाहतोय. तर स्क्वेलेकचे पंच परेश महाजन सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. कुमार सिवार स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं षटक हाताळतोय. यावेळी मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट होतोय. या फलंदाज वुडलँड स्पॉटवर चेंडू फेस झाला होता, निघून जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. यावेळी फोर्स केलेल्या चेंडूला समोर जितू मालियाच्या डोक्यावरून मस्तक पे दस्तक देणारा षटकार सुखदेव भामरेच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते. धावसंख्या 6 ने वाढून होती ती धावफलकावर 41 धावा 41. फोर्सिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय या फलंदाज सुखदेव भामरे याच्या बॅटमधून. सागर भोईर सुखदेव भामरे ही जोडी मैदानामध्ये. धावसंख्या 41 41 धावा. रियान स्पोर्ट्स विपक्ष सेवा स्पोर्ट्स या दोन संघामधील सामना आपण पाहतोय. पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी ऑन साईडला चेंडू टोलवलेला आहे. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव ओव्हरथ्रो झालेला आहे आणि ओव्हरथ्रो जोपाने आणखीन धाव मात्र इथे मिळेल ती फलंदाजी करणार रियान स्पोर्ट्स रांजुली संघाला. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते इथे 43 वर 43. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. कुमार चौथं षटक हाताळतोय सिवा स्पोर्ट्स या संघाकडून.
43 धावा धावपलकडे पाहायला मिळत आहेत. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना कुमार यावेळी सामना करेल फलंदाज सागर. यावेळी सुरेख चेंडू आणि चेंडू निघून जातोय एस्ट्रेक्सच्या हातामध्ये. पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. एका धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 44 रन. डबल 4. आपण पाहतात नारायण प्रतिष्ठान भादोड आणि भादोड 11 आयोजित पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय दिलीप भोईर स्मृती चषक 2022चं आयोजन. या स्पर्धेमध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या दिवसामधील हा चौथा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या फेरीमधील हा शेवटचा सामना आपण पाहतो आणि यानंतर दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यांना सुरुवात होईल. पंचांचा नो बॉलचा इशारा आलेला आहे. पुढील चेंडू फ्री हिट असणार आहे आणि फ्री हिट खेळण्याची संधी मिळते ती सागर भोईर याला. पाहूया सागर भोईर या फ्री हिटवर बिग हिट फटका खेळतोय का. कुमार पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी फटका तर खेळलेला आहे आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. डिक्लेअर झोनमध्ये 2 धावांसाठी. धावसंख्या 2नेच वाढेल. धावसंख्या 2ने वाढून झालेली आहे ती धावफलकावर 46 धावा 46. पावसाचे आगमन आता मात्र पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी पावलांचा वापर केलेला आहे. पुढे येऊन हा फटका खेळलेला मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. मिडविकेट रिझनमध्ये झेल आणि सागर भोईराचा समाप्त होतोय ते खेळ. सागर भोईराची गेली संपुष्टात. चौथा फलंदाज बाद होतोय या रियान स्पोर्ट्स रांजणोली संघाचा सागर भोईरच्या रूपाने. 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 46 धावा 46. चालू क्रिकेटमधील दुसरी पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आपण पाहतात नारायण प्रतिष्ठान भादोड आणि भादोड 11 आयोजित स्वर्गीय दिलीप भोईर स्मृती चषक 2022चं आयोजन. स्वर्गीय दिलीप पांडुरंग भोईर आपल्यामध्ये नाहीत आणि त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देण्यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलेलं आहे. पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आता मात्र पावसाचं आगमन झालेलं आहे. प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. यावेळी अप्परकडच्या अंदाजाने फटका केलेला आहे. एक धाव कंप्लीट केली जाते. सिंगलवर समाधान मानावं गेलं. दोन्ही फलंदाजांना धावसंख्या एकेरी धावने वाढवून होती ती धावफलकावर 47 धावा 47. शेवटची षटक मार्गदर्शक शुभम गुलवी शेवटच्या षटकात आलतोय. यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर खूपच उचली घेतोय. 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा दिला जातोय आणि पंचांचा योग्य निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण फलंदाजाच्या रिचच्या बाहेरचा चेंडू होता. धावसंख्या सिंगलने वाढेल. अवांतर धावेमध्ये ही भर पडते. शुभम गुलवे यावेळी मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. एकच धाव डिक्लेअर झोनमध्ये. इथे धावसंख्या फक्त सिंगलने वाढेल. सिंगलने धावसंख्या वाढून होती ती धावपलकडे 49 धाव 49. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. शुभम गुलवी मागील सामन्यामध्ये राजा गुलवे याचा खेळ आपण पाहिला होता. यावेळी मात्र सुरेख फटका आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. सुखदेव भांबरेच्या बॅटमधून निघालेला षटकार.
धावसंख्या 6ने मुसंडी मारते. धावसंख्या 6ने वाढून होते ती धावफलकावर 55 धावा. 55 धावा धावफलकार झलकल्या गेलेले आहेत. 5वं षटक मार्गस्थ असताना पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणा भादवडा टेमघरपाडा या मैदानावर. आणि या मैदानातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण प्रिन्स मूवीज रवी गुलवी प्रथमेश पाटील आणि त्यांच्या संपूर्ण टेक्निकल टीमच्या माध्यमातून केलं जात आहे. यूट्यूबवर ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करू शकता. शुभम गुळवे यावेळी 16 चेंडू पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. अव्वंतर धावेमध्ये भर. धावसंख्या सिंगलने वाढेल आणि पुढील चेंडू फ्री हिट असणार आहे. धावसंख्या एकेरी धावेने वाढून होती ते धावफलकार अब तक 56. पाहूया फ्री हिटची संधी आलेली आहे सुखदेवकडे. फ्री हिटवर बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू निघून जाईल सीमा पार. यावेळी मात्र हा चौकार. धावसंख्या 4ने वाढून होते ती धावफलकार 60 धावा. 60. एक चांगली धावसंख्या रिलायन्स स्पोर्ट्स राजुली संघाकडून आता मात्र पाहायला मिळते. त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. या दुरून क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू फील करून फेकी करेल तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण करतील दोन्ही फलंदाज. या 2 धावेने रिलायन्स स्पोर्ट्स राजुली संघाची धावसंख्या पोहोचते 62 वर. 62 धावा. 62. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू असताना पुन्हा एकदा त्याच दिशेने फटका खेळलेला आहे ऑन साईडला स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. आणि वेगाने 2 धावा फलंदाज पूर्ण करतायत. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2च धावांवर समाधान मानावं लागेल. धावपाच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेले. तर अशा प्रकारे पहिल्या इनिंगमध्ये रिलायन्स स्पोर्ट्स राजुली संघाने आपल्या धावफलकर धावा झळकवलेल्या त्या 64 आणि 65 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे शिवा स्पोर्ट्स या संघासमोर. तर वळू आपण टॉस केला जाईल.
बरसा पानी और उसी तरह की बरसात हो रही है। 65 का लक्ष्य रखा है रियान स्पोर्ट राजनौली ने शिवास 11 के सामने। और बात चैलेंज की तो चैलेंज ने आरके ट्रॉफी को 3 मर्तबा जीता इस ग्राउंड पे। हालांकि जो आखिरी आरके ट्रॉफी था वहाँ पे एक रोमांचक मुकाबले में चैलेंज को जीत इसलिए मिल गई थी कि जमा कैच लेते हुए काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। आरके ट्रॉफी 2015 जिसे महिंद्रा स्पोर्ट्स ने जीता था। खेल की शुरुआत होती हुई सागर भुईर किफ़ायती गेंदबाज, पहली गेंद उछल कूद के मारने की कोशिश, वाइड पटकी भी गेंद थी। जीतू माली और नीलेश पाटिल दोनों ओपनर बीच मैदान पे, राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की जानिब कटी। खेलना चाहते थे जीतू माली, बीट हुए। 65 का लक्ष्य है, 13 का आस्किंग रन रेट है मैच को जीतने के लिए। इसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला, गुरसई भी वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट चैलेंज। लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड। बरसात गिरने के बाद गेंद को ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। एक और पटकी भी गेंद, नो बॉल, दूसरा बाउंसर है ये। 1 फॉर दी ओवर का पहले ही इशारा आया था। फ्री हिट आता हुआ 1 रन से स्कोर 3 पे पहुंचा। योगेश तरे साहब हमसे जुड़ चुके हैं, उद्योगपति, आपका हार्दिक स्वागत है। इस मरतबा खेल दिया है लेकिन इस बीच केवल 1 ही रन मिलेगा। हालांकि शॉट बहुत दमदार था लेकिन आउटफील्ड की पोजीशन की वजह से 1 रन आता हुआ। कुल स्कोर 4 रन। अभी भी कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए जीतू माली। स्ट्राइक के लिए अब नीलेश पाटिल सामना करने जा रहे सागर भुईर का। हल्की बूंदाबांदी होती हुई इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। गजब का शॉट, क्या फॉलो थ्रू है, क्या टाइमिंग है, अफलातून स्ट्रोक। फ्रंट फुट को आगे निकाला, हॉफली पे लिया, गेंद को लॉफ कर दिया लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। 10 पे पहुंचा स्कोर इस वक्त पहले ओवर की समाप्ति के बाद। बचे हुए 4 ओवर में शिवास स्पोर्ट्स को जीतने के लिए यहां से 55 रन चाहिए। अब आस्किंग रन रेट थोड़ा बढ़ गया है। एक गेंद बाकी है, सॉरी नो बॉल था। देखना है कि 1 गेंद बाकी है और उसका नीलेश पाटिल ने सिक्सर से खाता खोला है। पहली वाइड थी, दूसरा डॉट, 3 गेंद हुए अभी। रंग लाई आपको ये तूने लिखने नहीं वो 6 मारा ना, वो 6 मारा मेरा वही ओवर के बाद। 10 रन हो चुके हैं। सागर महंगे साबित होते हुए। इस मरतबा गेंद हवा में जरूर है लेकिन नो मैच लैंड में जाती हुई दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 2 रन बनाए, पैरों से रोकने की कोशिश, तीसरे की कॉल और 3 रन पूरे होते हुए यहाँ पर प्रमोद थोड़े से नाराज है। वहाँ पर 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ शिवास 11 का 13 रन बिना किसी विकेट के। बैंग ऑन टारगेट बल्लेबाजी हो रही है। सागर अपने स्टेप में चूके। हल्की बारिश जब गिरती है तो गेंदें स्किड भी नहीं होती लेकिन गेंदबाज को ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रनअप पे भी थोड़ा ध्यान देना होता है। इस मरतबा ओवर पिच गेंद लॉफ कर दिया सीधा डाउन द ग्राउंड, 6 रन। खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया।
जहां पे नीलेश पाटिल ने सिक्सर लगाया था, जीतू माली ने ये सिक्सर लगाया और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। बहुत महंगे साबित हो रहे सागर भुईर। हालांकि रबर क्रिकेट पौसाली क्रिकेट की चैंपियन टीम है इस सीजन की, एक कप को जीतकर रेयान राजनौली। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। एक ओवर में सिल्वर जुबली रन दे डाले हैं सागर भुईर ने, 25 रन दिए हैं और यहां से अब जीतने के लिए केवल 35 रन चाहिए। 40 रन चाहिए 4 ओवर में। आस्किंग रन रेट 10.00 का, गजब की बल्लेबाजी। सागर भुईर इस सीजन में इतना महंगा ओवर तो ना उन्होंने टेनिस क्रिकेट में किया ना रबर क्रिकेट में। रहता है कभी कभी, आपका दिन नहीं रहता है। और शिवास 11 एक ऐसी टीम है, लेटर इन दी पिक्चर सिटी क्रिकेट BC4 में आई, काफ़ी कामयाब रही टेनिस क्रिकेट में भी। मरता क्या ना करता युवा गेंदबाज को लगाया गया है। हरीश पहली गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया, डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, गेंद बंदूक की गोली की तरह, 4 रन। विनीत माली तेज तर्रार गेंदबाज है, सामना करेंगे नीलेश पाटिल। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे नीलेश। इस मरतबा फिर आरे बल्ले से खेला, क्या गजब की फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, चीते की तरह झपटे विनीत, कोई रन नहीं। स्कोर है 29 रन। शिवास 11 बिना किसी विकेट के। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 10 विकेट हाथ में। ओ अच्छी गेंद खोद के निकाला, हेलीकॉप्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे, अच्छी फील्डिंग, 1 रन आता हुआ स्कोर में। हालांकि सबसे अच्छे फील्डर भी थे वहां, जीतू 1 रन से स्कोर 30 पे पहुंचा है शिवास 11 का। राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं विनीत। इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम, 6 रन। काउंटर अटैक शुरू हो चुका है शिवास 11 का। और वो जो कहते हैं कि खरबूजा छुरी पे गिरे, ये छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है, यहां कट रहे हैं गेंदबाज। 36 रन कहर बर्पा कर रहे हैं बल्लेबाज शिवास के। 29 रन और चाहिए। फिर से ये भी चली साजन के घर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड को बना दिया और हैट्रिक सिक्सर लगा दिया है जीतू माली ने और कह दिया है कि मैच जीता के रहेंगे। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 42। चैंपियन टीम कठिनाइयों में। रेयान राजनौली जो इस सीजन में रबर क्रिकेट BC4 फॉर्मेट की चैंपियन टीम है, वो कठिनाइयों में आ चुकी है। 42 रन हुए। प्रमोद मात्रे जब गेंदबाजी को आएंगे तो लगता है कि बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। 42। बहुत महंगे साबित हो रहे हैं विनीत माली। विनीत माली की काफी खबर ली जा रही है। अब तक 5 गेंदों पर विनीत ने 17 रन दे डाले। सिक्सर की गेंद वाकई में, और सिक्सर लग भी रहे। अच्छा कवर ड्राइव,
1 रन बनता हुआ स्कोर में। मैं पीछे ना गए, भागो सर, भाग। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है वहां पर, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। तार के वो साइड जाएगा तो डिक्लेयर है, तार को लग के वापस आएगा तो भाग के रन लिए जाएंगे। 2 ओवर की समाप्ति, बचाने को कुछ भी नहीं है। राजनौली के पास 44 रन बने, बचे हुए 3 ओवर में यहां से केवल 21 रन चाहिए। इट हैज बीन अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम जीतू माली एंड नीलेश पाटिल। मरता क्या ना करता, प्रमोद मात्रे को अब बुलाया गया है। अब देखना है कि प्रमोद मात्रे सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते या फिर सांप को पकड़ते हैं। विकेट तो यहाँ पे जरूरी है जहां तक राजनौली का ताल्लुक है। प्रमोद मात्रे सामना करेंगे जीतू माली। मैन फ्रॉम भाटाले, बैकफुट पे गए, कंट्रोल पुल शॉट है, अच्छी गेंद थी लेकिन मिड विकेट पे से फील्डर जब तक पहुंचते, विनीत 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन बिना किसी विकेट के, 46 विदाउट लॉस। 19 रन और चाहिए, 17 गेंदें बची। इक्वेशन बहुत आसान, ये क्रिकेट है। कभी आप चैंपियन, ओ जबरदस्त गेंद थी, नो बॉल घोषित किया वहां पर। ऑन साइड पे 6 खिलाड़ी रख दिए गए थे। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। स्कोर 2 रन से 48 पे पहुंचा है। क्या खूबसूरत गेंद थी, लेकिन 6 खिलाड़ी ऑन साइड पे थे, दोनों अंपायर ने साथ में नो बॉल घोषित किया। इसे कहते हैं प्रोफेशनल अंपायरिंग। प्रमोद, अंपायर शकील कोटी और अंपायर महाजन, परेश महाजन। कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके गेंद 1 रन के लिए चली गई है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। अब धीरे धीरे राहुल गुप्ता फैम टीम को जीत की खुशबू, सुगंध महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ से 16 रन और चाहिए और गेंदें भी 16 बची। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। 4 या 6, पहले बाउंस पर मिड विकेट बाउंड्री पे 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू माली। 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी है और कुल स्कोर 53 पे पहुंच चुका है। कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था गेंद को मिड विकेट पर। 4 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 53 रन। 12 रन चाहिए जबकि 15 गेंदे हैं। इस मरतबा ऑन दी आप खेला 2 रन के लिए, कवर ड्राइव लगाते हुए ऑन द राइज। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पे पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला चल रहा है और दुनिया में कोई भी शख्स एक तरफा प्यार और एक तरफा हार नहीं चाहता। फिर निकल के मारने की कोशिश, गेंद की लंबाई को खींचा, अच्छी वापसी, लेकिन अब लगभग ऐसा लग रहा है कि रेहान राजनौली, जो कि पिछले कप की चैंपियन टीम है, 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू। फिर निकल के मारा है, इस मर्तबा नहीं रुकेंगी। 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेंद की पिच पर जाके उछाल दिया। 6 रन, सिर्फ 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और लगभग मुकाबला एक तरफा। जो अपने होम ग्राउंड पे शेर थे, आज राजनौली टीम के खिलाड़ी ढेर होते हुए।
34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू, जबकि अब सामना करें नीलेश पाटिल। सुखदेव का लेग ब्रेक गेंदबाज, फुल टॉस गेंद उछाल दिया, मैच समाप्त। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल गुप्ता एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक प्रमोद सागर एंड रेयान राजनौली एंड महेश ठाकरे। क्या परफॉर्मेंस दिया यहाँ पर, सराहना करनी होगी। मैन ऑफ द मैच जिन्होंने मैच जिताया वो खिलाड़ी हैं जीतू माली। जीतू माली इज द मैन ऑफ द मैच। जीतू आपको आना है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। गोरसई भी बनाम चैलेंज स्पोर्ट। जीतू माली जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और गुरसई भी आपको तुरंत फील्ड सजाना है क्योंकि यहाँ से 3 मैचेस हमें खेले जाने बाकी हैं। 34 रन नॉट आउट। वेल प्लेड जीतू। जीतू आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। यस आइए, जीतू माली को मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। प्रहलाद नाइक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मशहूर ऑलराउंडर, आजकल 40+ में भी अपना नाम कमा रहे हैं। वेल प्लेड जीतू, व्हाट अ फंटास्टिक नॉक। मैन ऑफ द मैच प्रहलाद नाइक के हाथों से देते हुए हम